Good morning, students. And we were discussing about coordination compounds. In coordination compounds, in our previous class, we had seen that why some compounds they undergo complex formation. We had seen about Werner's theory. We had seen about primary valency, secondary valency. We had seen ionizable valency and non-ionizable valency. We have seen some isomers giving different colors, and those isomers were mainly ionization isomers. Alright, so up to this we have seen. So we have some very elementary ideas about coordination compounds. Today we will develop two skills. We will learn about IUPAC nomenclature of coordination compounds. As you know that IUPAC stands for International Union for Pure and Applied Chemistry. Alright, so they are authorized for making rules for naming various chemical compounds. In class 10th, you must have studied about the IUPAC nomenclature of organic compounds. So similarly, there are some rules of IUPAC for naming the coordination compounds. So instead of trying to mug up the rules, we will try to learn the rules and write the rules in our own language, so that in the exam we can do the skill based questions. Alright, because nobody will ask you to write down short notes of the rules. Alright, writing down the short notes of the rules will not be asked, because it will be too easy for this generation to be asked. What is asked is to either write down the name of a given formula or to write down the chemical formula for a given name. Alright, so there are two skills for which we require practice. We have to write the chemical formula for any given name. Alright, so let us take one name. We will take one name from your book. Tetraamine aqua chlorido cobalt 3 chloride. Tetraamine aqua chlorido cobalt in bracket 3 chloride. Now, how to write down the chemical formula for this? Let us try to understand how the name is written. You will see that these two A's are not mixed up. These two A's are used. Alright, so tetraamine, one A is not used. Both the A's are there. Alright, so both the A's should be there. Diphthong is allowed in this. Means mixture of two vowels. The ending vowel of one term and the starting vowel of the other is allowed. The first letter is capital. There is no space anywhere. Okay, there should be no space in the name anywhere. Alright, so there should be no space at all. The first one should be capital and rest all should be small. So this is the grammar which we have to follow while writing the name. So first rule is clear. Although this rule will not be written anywhere, but you can see this. Mostly the mistakes which are made by the students while writing the name is that they would write tetraamine and single A they would write, or they would start with small t. That would become wrong. Okay. So the first thing is that we have to write down the central metal atom. Central metal atom is what? Cobalt. Now you will see that all the ligands are in the alphabetical order. This is A, after A, M, and this is aqua. Aqua means water, amine means NH3. This is H2O, aqua, AQ. AM comes at first in dictionary, then AQ comes, and then CHL comes. You know, Cl. These all are ligands, electron pair donors. Now, how many amines are there? 4 amines are there. Tetraamine. How many aqua are there? 1 aqua is there. How many chlorine is there? 1 chlorine is there. Alright. So
Similarly, we will write tetraimine NH3 whole 4. One water is there, so we can write in one bracket one water. One chlorine is there. Now, since this is cobalt 3 plus, that means it is plus 3, and it is a negative ligand, it is -1. So overall charge on this becomes how much? +2. Now tell me how much of chloride will be there? Chloride will be Cl2. So what rules did we apply? The rules which we applied is, first of all, identify central metal ion or atom. Second, identify ligands and their number. How many ligands are there? Third, identify oxidation number of central metal ion or atom. Identify coordination sphere. Then identify ionization sphere. Then neutralize the charge with counter ion. With counter ion, we neutralize the charge, isn't it? So in this way, we can write down the formula. Now see, without remembering the rules, we can jot down the rules by doing this drill. जो हम काम करेंगे, उस काम का नियम हम लिख सकते हैं. यानी कि अगर आपको बाईसाइकिल सीखना है, तो बाईसाइकिल चला के सीखना होगा. बाईसाइकिल के रूल्स को सीखने से आप बाईसाइकिल नहीं सीख सकते हैं. तो हमने क्या किया यहाँ पे? डायरेक्टली वी अप्लाइड आवर कॉमन सेंस, और जो जो हमने किया उसको सीक्वेंस में लिख दिया, तो रूल्स बन गए. तो रूल्स को अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यद्यपि आपके बुक में दी हुई है. तो दीज रूल्स आर नॉट एनीथिंग अदर देन दीज. ऑलराइट, तो शॉर्ट में यहाँ पे मैंने लिख लिया ये रूल्स को. ठीक है, अप्लाई तो हमें यहाँ पे करना है. सेकेंड कंपाउंड लेते हैं. सेकेंड कंपाउंड इज पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सीडो जिंकेट. पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सीडो जिंकेट. जिंकेट का मतलब क्या हुआ? जिंकेट का मतलब हुआ जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, एसीटेट. ये क्या है? एनायन है. ये कोई कंपाउंड नहीं है, ये एक एनायन है, क्योंकि इसमें लास्ट में 8 है. जिसमें भी 8 लास्ट में रहता है, जो उसमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन रिच एनायन होता है. जैसे सल्फेट, नाइट्रेट, एसीटेट, कार्बोनेट, वैसे जिंकेट. ऑलराइट, टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट यानी कि कितना हुआ? सेंट्रल मेटल एटम कितना हुआ? जिंक. टेट्राहाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा दिए. जिंकेट में यहां पे स्टॉक नोटेशन में 2 चार्ज दिए हुए हैं. ऑब्वियस है, जिंक 2+ होता है और ये 4- है. तो बाहर कितने चार्ज होंगे? 2-. 2- को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? पोटेशियम से. हाउ मेनी पोटेशियम विल बी रिक्वायर्ड? K2. So it will become K2ZnOH whole 4.
दिस विल बिकम K2ZnOH होल 4। फिर से करें, कंपाउंड क्या था? कंपाउंड था टेट्रा पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट आयन, दिस इज आयन, और बेटर वी कैन राइट potassium salt of this iron, so we can write zinc tetrahydroxido, दो नेगेटिव चार्ज आ गया, 8 है ही, 2 नेगेटिव चार्ज कैन बी सेटिस्फाइड बाय 2 पोटेशियम आयंस, सो इट विल बी पोटेशियम, है ना। हमेशा पॉजिटिव चार्ज को पहले लिखते हैं और नेगेटिव को बाद में लिखते हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट वैसे ही पोटेशियम जिंकेट, वैसे ही पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, ठीक है। हाइड्रोक्सीडो के बदले हाइड्रोक्सीडो के बदले हम हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो के बदले हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड, डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइमीन कोबाल्ट 3, डाइक्लोरिडो बिस, बीस का मतलब होता है 2, 20 किस में लगाते हैं हम? डाई के बदले 20 लगाते हैं ऐसे लिगेंड में, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर में जिसमें 2 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट होता हो, ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड के केस में, जैसे इथिलीन डायमीन, इथिलीन 1,2 डायमीन, बिस इथिलीन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन भी लिख सकते हैं, इथेन 1,2 डायमीन, बिस इथेन 1,2 डायमीन, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3। So how to write this? इस लिगेंड को समझते हैं पहले। इथिलीन 1,2 डायमीन, यहाँ पे डाई पहले था, दोबारा डाई लगाएंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए इस प्रकार के लिगेंड के लिए हम 20 लगाते हैं। इथेन डायमीन मीन्स दिस इज इथेन स्केलेटन, 1H 2H 3H 4H, एक एमोनिया यहाँ पे, एक एमोनिया यहाँ पे, और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, है ना, ये डायमीन हो गया। सो हाउ विल वी राइट द फॉर्मूला? वी विल राइट द फॉर्मूला लाइक दिस, कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 है, डाइक्लोरिडो है, कोबाल्ट डाइक्लोरिडो, इथिलीन डायमीन को हम शॉर्ट में लिखते हैं EN। कितने सारे हैं? 2 हैं, 2 हैं, इसमें +3 चार्ज था, इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है, तो यानी कि ये पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज इसमें रह जाएगा, सो इट विल बी ए कैटायन, इट विल बी स्टिल ए कैटायन। नाउ विल डू सम रिवर्स, अब हम क्या करेंगे? केमिकल फॉर्मूला दिया रहेगा, अब उसका हम नाम लिखेंगे और फिर उसका रूल्स भी लिख लेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल है, ये स्केल 2 कर रहे हैं, स्केल 1 हो गया हमारा, ठीक है, स्केल 2 का फर्स्ट,
PTNH3 whole twice Cl NO2, PTNH3 whole twice Cl NO2 ब्रैकेट बंद, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है. ओके, एनी डिफरेंस? नो डिफरेंस. ऑल राइट. अब हमें ये पता करना होगा कि सबसे पहले कि जो लिगेंड है उसके नाम कौन कौन से हैं. तो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट द लिगेंड्स. सो और वी कैन आइडेंटिफाई द सेंट्रल मेटल, आयन और मेटल एटम. What is it? Platinum. Does it have any charge? क्या इसमें कोई चार्ज है? इसमें तो कोई चार्ज नहीं है, टोटल जीरो है यहाँ पे. इसमें -1 है, इसमें -1 है. इसमें कितना होना चाहिए? +2 होना चाहिए. और ये न्यूट्रल लिगेंड है, 0. So what we can write? We can write this will be diamine, chlorido and nitro. So diamine, chlorido and nitro. Alphabetically ये पहले, ये सेकेंड और ये थर्ड. So we'll name as chlorido, diamine, nitro, platinum, two. क्या ये सही है? इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें मिस्टेक ये है कि जो डाई है इसको, ये जो काउंट्स है इसको हम अल्फाबेट में काउंट नहीं करते हैं, इसको काउंट करते हैं अल्फाबेट में. दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम 2 एंड दिस विल बिकम 3. सो द करेक्ट नेम शुड बी डायमीन. जैसे यहाँ टेट्रामीन में टी को पहले हमने नहीं देखा था, पहले हमने ए को ही देखा था. ठीक है. सो दिस काउंट्स आर नॉट सीन. डायमीन, diamine, chlorido, nitro. Now nitro can have two types of linkages. हाँ, इसका दो तरह से लिंकेज हो सकता है. एक तो हो सकता है ऑक्सीजन से, दूसरा हो सकता है नाइट्रोजन की तरफ से. दिस ऑक्सीजन कैन ऑल्सो एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, नाइट्रोजन कैन ऑल्सो एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. ठीक है. तो ये जब हम NO2 लिखेंगे तो इन जनरली हम लिखते हैं विथ लिंकेज N नाइट्रो प्लैटिनम 2. अगर ऑक्सीजन से होता तो हम यहां पे लिखते हैं O नाइट्रीटो. ठीक है. तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट. This is wrong, this is right. We will take one more example or a few more examples. ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है स्टॉक नोटेशन में, इसको लिखना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज K3Cr trioxalato.
K3Cr, C2O4 ट्राईऑक्सलेटो। ऑक्सलेट आयन कैसा होता है? वी हैड सीन इन रेडॉक्स टाइट्रेशन। बाइडेंटेड लिगेंड है, यहां से डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां से डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो 2 माइनस है बेसिकली। सो इफ यू टेक दिस 3 आउट, 3K प्लस दिस विल बिकम Cr, C2O4 3 minus, so this 3 minus is due to this oxalate. This is having how many? 3 minus 2 into 3. So how many positive charge does it have? To nullify 3 charges at least. Total how many charges are there? This has to have 3 outside. -3 इसके अंदर बाहर होना चाहिए, इसके अंदर -6 है, तो ये कितना होगा? तो x -6 should be equal to -3. So x should be equal to 6 minus 3 equal to +3. So any chromium is in +3 state. ठीक है. So what we have to do, first of all, you have to identify central metal ion, then you have to identify oxidation number of central metal ion or atom, then alphabetical order of ligands, then alphabetical order of ligands. यहाँ पे बस एक ही लिगेंड है, so how will we name? जो पॉजिटिव है पहले लिखते हैं, है ना? कैटायन is named first, anion is followed by, so K3 is potassium. ट्राई पोटेशियम क्यों नहीं कह रहे हैं? बिकॉज इट इज अंडरस्टूड, क्योंकि यहाँ पे +3 चार्ज है ना। जैसे हम इसको मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड नहीं कहते, इसे हम एल्यूमिनियम क्लोराइड कहते हैं, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टूड है कि ये +3 है, ठीक है। इसको हम सोडियम फॉस्फेट कहते हैं, सोडियम ट्राई सोडियम फॉस्फेट नहीं कहते। उसी प्रकार से हम इसको ट्राई पोटेशियम और ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमियम नहीं कहेंगे, सिर्फ पोटेशियम कहेंगे। पोटेशियम ये आयोनाइजेशन स्फीयर है, इसको अलग रखना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को अलग लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे? ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमियम in bracket these 3, so it will be its name. तो जब भी आयोनाइजेशन स्फीयर होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, थोड़ा स्पेस देंगे, अदरवाइज स्पेस नहीं देंगे, ठीक है। सो कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट, देन एनायन इज फॉलोड बाय, एनायन is followed after cation. सिंपल है। सोडियम क्लोराइड कहते हैं, क्लोरियम सोडाइड नहीं कहते। तो जो पॉजिटिव है उसको पहले कहते हैं, नेगेटिव को बाद में कहते हैं। लेट अस टेक ए फ्यू मोर क्वेश्चन। रूल्स तो निकल गए अपने, 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करने पे ही रूल्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। बिसिथिलीन डायमीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट क्लोराइड, COCl2 इथिलीन डायमीन ट्वाइस और क्लोरीन। इथिलीन डायमीन न्यूट्रल लिगेंड है, ये नेगेटिव लिगेंड है -2, ये है -1, ये क्लियरली +3 है, ठीक है। सो सेंट्रल मेटल आयन इज कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल आयन क्या है? कोबाल्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3 है, ये भी निकल गया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर करेंगे तो क्या होगा?
20 इथिलीन, तो 20 काउंट नहीं करेंगे, है ना। और ये क्लोरिडो है और ये इथिलीन डायमीन है, तो क्लोरिडो पहले काउंट करेंगे। व्हाट वी विल राइट, डाइक्लोरिडो डाइक्लोरिडो 20 इथीन डायमीन यहाँ पे 20 इसलिए लगाते हैं ताकि ये डाई डाई दो बार ना आ जाए, इसलिए बाइडेंटेड लिगेंड के केस में हम 20 ट्रिस टेट्राकिस ऐसे लगाते हैं। डाइक्लोरिडो 20 इथिलीन डायमीन कोबाल्ट कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे 20 के बाद, ठीक है। नाउ आवर नेम इज करेक्ट। वी विल सी वन मोर क्वेश्चन। पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। Very clearly, this is -2, this is -1, this will be +3, this is 0, multiplied by whatever, doesn't matter. So how will we name? We'll name it as penta amine. This is carbonato, carbonate to cobalt, oxidation number 3 chloride. Let us take one more example. Mercury 1 tetrathiocyanato S cobaltate 3 Hg cobalt thiocyanato SCN 4 मेटल बाहर है और ये इस तरफ है, तो इस तरफ जो रहेगा वो क्या होगा 8 होगा, इस तरफ जो होगा वो EM होगा। तो यहाँ पे क्या होगा मरकरी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे बाद में। यहाँ पे ये थायोसाइनेटो है और S से लिंक्ड है, तो लिखेंगे हम टेट्रा S थायोसाइनेटो या फिर थायोसाइनेटो S, टेट्रा थायोसाइनेटो, लिंक S से है सल्फर एटम से, इसलिए S, कोबाल्ट, मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +2,
यानी कि अंदर -2 है और ये है -1 इंटू 4, -1 इंटू 4, इसको x कर लेते हैं। सो x -4 इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू +2। So its valency becomes 2 and this becomes cobaltate, जहां पे कोबाल्ट की वैलेंसी है +2। इस प्रकार से आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में या फिर आपके साइड बुक एक्सरसाइज में कई सारे फॉर्मूलेस दिए हुए हैं, उसके नेम खुद से लिख कर चेक करिए और जो नेम्स है उन नेम्स को फॉर्मूला में कन्वर्ट करके चेक करिए। ऐसा करने पे ये जो दो स्किल है, एक स्किल टू राइट द नेम, दूसरा स्किल है टू राइट द केमिकल फॉर्मूला, ये दो स्किल जो है आपके पक्के हो जाएंगे। ये पक्का हो जाने के बाद फिर हम स्ट्रक्चर समझ पाएंगे, उसके पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझ पाएंगे, उसके डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझ पाएंगे, उसके स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे, उसके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को समझ पाएंगे, ठीक है, और कई सारे और प्रॉपर्टीज समझ पाएंगे। तो ये दो प्रैक्टिस आपको करना है आज, ठीक है। कहाँ से करेंगे? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जिस क्वेश्चंस में कई सारे फॉर्मूला होंगे जिसके नेम लिखने हैं और बहुत सारे नेम होंगे जिसके फॉर्मूला लिखने हैं। तो ये दो स्किल आपको आज प्रैक्टिस करने हैं। सो आई विल गिव यू दिस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द वीडियो टू फॉर यू टू प्रैक्टिस एंड रियलाइज योर लर्निंग आउटकम। थैंक यू।